Namaskar. A hearty welcome to Sahitya Academy's Webline Literature Series. I heartily welcome all the participants and viewers on behalf of Dr. K. Srinivas Raoji, Secretary Sahitya Academy, to this program. Friends, as all of you know, you are witnessing a program called Literary Forum in Multilingual, and it is being organized on the occasion of Teachers' Day. As you know, in India, 5th September is being celebrated as a Teachers' Day on the eve of birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the former President of India. Just for the, I want to bring a few facts to your kind notice. That Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ji, he was born in a Telugu-speaking family in Tirutharani of Madras Presidency. In those days, it was there in Madras. Later, it was bifurcated as a Madras, as a Madras in Andhra Pradesh. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ji, in his early years, he spent in both Tirutharani as well as in Tirupati. After his first of arts class, in those days it is called as a FA, he joined Madras Christian College, affiliated to Madras University at the age of 16. He graduated from there in 1907 and also finished his masters from the same college. He studied philosophy by chance rather than a choice. And he wrote his first bachelor's thesis on the title, The Ethics of the Vedanta and its Metaphysical Presuppositions. In April 1909, he was appointed to the Department of Philosophy at Madras Presidency College. Thereafter, in 1918, he was selected as a professor of philosophy by the University of Mysore, where he went on taught philosophy. In 1921, he was appointed as a professor in philosophy to occupy the King George V. Chair of Mental and Moral Science at the University of Calcutta. In 1929, he was invited to take the post of a principal of at Manchester College. Because his first notable work because he belongs to philosophy, and his first notable work on philosophy was The Philosophy of Rabindranath Tagore. This is the first book that he penned. And he was famous for his work on comparative religion, compared to Eastern and Western philosophy. In 1936, he was named Planting Professor of Eastern Religion and Ethics at the University of Oxford, and he was elected as a Fellow of All Souls College. Later, in fact, just for the benefit of the viewers, I want to say one more fact, that he was nominated for Nobel Prize for 16 times for literature, and for 11 times for Nobel Peace Prize. In the year 1939, Pandit Madan Mohan Malviya invited him to succeed him as a Vice Chancellor of Benares Hindu University, where Dr. Sarvepalli Radhakrishnan went on, served as a Vice Chancellor till 1948. He represented India at UNESCO from 1946 to 52, and was later was appointed as Ambassador of India to the Soviet Union from 1949 to 1952. He was also elected to the Constituent Assembly of India during that time. As all of us know, that he was elected as a first Vice President of India in 1952,
and elected as a selected second president of India from 1962 to 1967. As a matter of fact, that when Dr. Sarvepalli Radhakrishnan became the president of India, some of his students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday on 5th September. And to the request of his disciples and well-wishers, he replied them saying that, I quote, instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if September 5th is observed as a Teacher's Day. His birthday has since been celebrated as a Teacher's Day in India. And the very fact of explaining the entire history is to how we have been celebrating Teachers' Day. But I'm proud to be associated with Sahitya Academy because Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was the first vice president of Sahitya Academy, and later he became the president of Sahitya Academy in 1958. And certainly, because Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was bestowed with many awards by many nations, including India in 1954. Sorry. He was confirmed with Bharat Ratna, the highest civilian award of India. But I'll be certainly fail in my duty if I don't mention one very fact that he is the recipient of most prestigious and highest honor of Sahitya Academy, that is Sahitya Academy Fellowship, the highest honor conferred by Sahitya Academy on a writer, and he is the first recipient of the same in 1968. So with these few words, I once again welcome all of you to this literary forum, Multilingual. And in this, we have in our midst four great poets, belongs to four languages. We have in our midst Dr. Rakesh Verma from Dogri language, Dr. Gaurav Pandey from Hindi language. We have Dr. Gurpreet Borawal from Punjabi language, and we have Dr. Balakrishna Sharma from Sanskrit. Now, with these few words, may I request Dr. Rakesh Verma. And one more uniqueness of today's program, I think, if I'm not wrong, and it is also just for the kind knowledge of the viewers, that all the participants of today's program happen to be directly or indirectly connected with the teaching profession only. So with these few words, may I request Dr. Rakesh Verma to recite poetry in Dogri language. Dr. Rakesh Verma. धन्यवाद सर। सारेंगी मेरी नमस्ते। मैं सारे कोला पहले धन्यवाद करना चाहंग साहित्य अकेडमी दिल्ली दा जिन्हें मिगी अज टीचर डे दे मौके उपर अपनी कविता पढ़ने दा मौका दिता। मेरी अज दी कविता दा सरलेख है गुरु ज्ञान। गुरु दी महिमा बड़ी प्यारी, दुख ते बिपता मिटदी सारी। गुरु दी महिमा बड़ी प्यारी, दुख ते बिपता मिटदी सारी। ज्ञान भरोचा सागर रहो, इरख प्यार दी गागर रहो, इरख प्यार दी गागर रहो। पढ़ो जगीता वेद पुराण, गुरु ग ब्रह्मा देवस्थान। पढ़ो जगीता वेद पुराण, गुरु ग ब्रह्मा देव समान। गुरु बनाना धर्म में साड़ा, रस्ते चलना कर्म में साड़ा, रस्ते चलना कर्म में साड़ा। गुरु ईश्वर गुरु ग भक्ति, गुरु ईश्वर गुरु ग भक्ति। रग रग साड़े परदा शक्ति, गुरु ईश्वर गुरु ग भक्ति। रग रग साड़े परदा शक्ति। गुरु बिना ज्ञान अधूरा, गुरु ग दसदा जीवन पूरा, गुरु ग दसदा जीवन पूरा। गुरु बिना नी थोंदी मुक्ति, दसदा उए इसदी जुक्ति। गुरु बिना नी थोंदी मुक्ति, दसदा उए इसदी जुक्ति। सुख ने सब साकारो करदा, दुख तकलीफां सब किश हरदा, दुख तकलीफां सब किश हरदा। लखां गंगा स्नान करो पाए, लंगर लाओ दान करो पाए।
लखा गंगा स्नान करो पाए, लंगर लाओ दान करो पाए, गुरुएं दा जो ज्ञान निथो है, जीवन दा कोई मुल निरो है, जीवन दा कोई मुल निरो है। सतयुग द्वापर गया त्रेता, कुन करदा अज गुरु गी चेता। सतयुग द्वापर गया त्रेता, कुन करदा अज गुरु गी चेता। कल जुग ऐसा पाप कमाया, गुरुएं दा बिंद मोल निपाया, गुरुएं दा बिंद मोल निपाया। चेला भी ते ओए कोई, गुरु दस्ते पोए कोई। चेला भी ते ओए कोई, गुरु दे रस्ते पोए कोई। कुतै नी लभदे चेले ओके, एक लभ्य ते करण हिजोखे, एक लभ्य ते करण हिजोखे। अज जमाना आया पुट्ठा, अज जमाना आया पुट्ठा, कुन बढ़दा है अपना अंगूठा, कुन बढ़दा है अपना अंगूठा। गुरु द्रोण नी थोंदे हेता, अर्जुन जोधा होंदे हेता। गुरु द्रोण नी थोंदे हेता, अर्जुन जोधा होंदे हेता। बनिए चेला धर्म नवाणा, बनिए चेला धर्म नवाणा। गुरु कशानी कोई सियाणा, गुरु कशानी कोई सियाणा। लास्ट च है, ब्रह्मा विष्णु सब भगवान, गुरु दी इज्जत कर दे मान। ब्रह्मा विष्णु सब भगवान, गुरु दी इज्जत कर दे मान। अज मान असें बधाना है, अज मान असें बधाना है। जुग मुड़िए ओ ले आना है, जुग मुड़िए ओ ले आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर राकेश वर्मा जी अगर और 2-3 कविता भी प्रस्तुत करना चाहते जरूर प्रस्तुत कीजिए, इसमें दिक्कत नहीं है। सर मेरे पास, मैं कहीं बाहर आया हूँ अच्छा प्रोग्राम अच्छा, में, तो मेरे पास एक ही कविता है फिलहाल। बहुत तो बहुत बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद जी। Rakesh Verma ji is a upcoming young Dogri poet, hails from Baku, from Jammu, a gold medalist in Dogri literature, holds a med in Dogri, and dedicated himself in teaching profession with a passion to write in Dogri since 2007. And one great thing is that when I was going through his another day in WhatsApp, I come across one great notable thing that it was written in his status as a inspire till expire. That is a, I think I felt myself very connected to that and felt very emotional. As a teacher, I think we need such a type of what you call maybe slogans to inspire the future generations of India. So thank you so much, Rakesh Verma ji, for थैंक यू सर, devoting your time. थैंक यू सर वेरी Now, मच। may I request Dr. Gaurav Pandey ji. Dr. Gaurav Pandey hails from Gorakhpur in Uttar Pradesh. Is a young poet in Hindi. Has a masters in Hindi as well as a PhD from Deen Dayal Upadhyay University, Gorakhpur. His first anthology of poetry, that is Dharti Bhi Ek Chidiya Hai, was published by Sahitya Academy under its Navodaya scheme. His poems have been carried out by many important literary journals and has been translated to many languages, including English, Bangla, Gujarati, Marathi, and other Indian languages. With a few words, may I request Gaurav Pandey ji to kindly present his poetry. सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते, प्रणाम। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही होगी, और नहीं पहुंचेगी तो फिर से मैं कोशिश करूंगा। और मेरी पहली कविता का शीर्षक है शिक्षा पिता। कल हम चाहते थे शिक्षक पिता 10 या 20 का पहाड़ा पूछें, लेकिन उन्होंने हमेशा 13, 17 और 19 का पहाड़ा पूछा। कैट, मैट, रैट की स्पेलिंग कभी नहीं पूछी, हमेशा एरोप्लेन और अम्ब्रेला की मीनिंग पूछी। भरी कक्षा में मुंह लटक जाता हमारा, डांट पड़ती। जब वो इतना कठिन पूछते तब हमें लगता वे अच्छे पिताजी नहीं हैं। जब हम अटक अटक कर बता देते तब उनके चेहरे पर
हमारा अच्छा बेटा वाला भाव जरूर दिखता था। आज भी जब हम करते हैं कोई मुश्किल काम, याद आ जाता है हमें पिता का चेहरा, और पिता इस सबसे अनजान हमारे बच्चों को याद करा रहे हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, पूछ रहे हैं दो का पहाड़ा और एप्पल की मिली, और इस तरह खुश हो रहे हैं जैसे बच्चे 13 और 17 का पहाड़ा सुना रहे हैं। दूसरी कविता का शीर्षक है पहले जैसे शिक्षक नहीं रहे। दरअसल ये अभी कुछ दिनों की बात है। सर, एक हफ्ता पहले मेरा एक विद्यार्थी गया था एक डिग्री कॉलेज पीएचडी में एनरोल्ड होने के लिए। तो एक पीएचडी के शिक्षक, एक हिंदी के आचार्य ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह ओबीसी के विद्यार्थी को रिसर्च नहीं कराता है। उसने ये कह दिया कि वह ओबीसी के विद्यार्थियों को रिसर्च ही नहीं कराता है। वो समण मानसिकता का व्यक्ति थे। तो खैर, ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में आती रहती हैं। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। तो एक कविता मैंने लिखी थी कि पहले जैसे शिक्षक नहीं रहे। उसी को जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ कि पहले जैसे शिक्षक नहीं रहे, यही आम राय है विश्वविद्यालयों के बारे में, यही महाविद्यालयों के, यही माध्यमिक और प्राथमिक के बारे में कि कहीं भी अब शिक्षक नहीं रहे। जो है वो बस नौकरी कर रहे हैं, जो है बस नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि उन्हें हम शिक्षक कह सकें, कि राजनीति ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि हम उन्हें शिक्षक कह सकें। मित्रों, नौकरी का रास्ता चाहे जितनी गलियों से गुजरता हो, लेकिन यह भी सच है कि शिक्षालय के गलियारे में सबका एक ही धर्म होता है, शिक्षा। नई नई नौकरी में आए मेरे दोस्तों, नई नई नौकरी में आए मेरे दोस्तों, इस सच्चाई से आप जितना जल्दी इस सच्चाई को आप जितना जल्दी अपना लेंगे, लोक में उतनी ही लाज बचा लेंगे। अन्यथा सब कहते हैं, मैं भी कहूंगा, जो साथी समाज बदलने के स्वप्न से भरे थे, अब वो बस नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि उन्हें हम शिक्षक कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव पांडे जी। Now we shall listen to Dr. Gurpreet Borawal from Punjabi language. Dr. Gurpreet Borawal is a young Punjabi poet, holds an MPhil and PhD from the University of Delhi, born in Borawal village of Mansa district in Punjab. Gurpreet ji has published his first book of poetry in Punjabi as Mateshwari in 2020. He has won the first position in poetry registration in Punjabi University, Patiala, and honored by Sardar Lakhvir Singh Jassi Memorial Award. And a lot of his poems and research papers have been published in all the noted and reputed journals. With these few words, may I request Dr. Gurpreet Borawal ji to kindly present his poetry on this occasion. नमस्कार सर। नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत धन्यवाद। मेरी पहली कविता है, पहले तो मैं सर पंजाबी वर्जन इसका रीड करूं। जी जी। मेरी पहली कविता है अध्यापक। अध्यापक नी का पहला पत्थर, अध्यापक खुद कोल आउण दा पहला चरण, अध्यापक शब्द विच लुकिया अर्थ, अध्यापक मन दी गंढ खोलण वाला पाठ, अध्यापक मत्थे चो फुटण वाली चेतना, अध्यापक धरती दा सूरज, अध्यापक बच्चे अंदर छुपी उडारी दा खंभ, अध्यापक समाज दा चौमुखिया दीवा, जे नाम वाले चौ पासे नेरी नेरा। इसका हिंदी वर्जन है जी। अध्यापक नींव का पहला पत्थर, अध्यापक खुद के पास आने का पहला चरण, अध्यापक शब्द में छुपा अर्थ, अध्यापक मन की गांठ खोलने वाला पाठ, अध्यापक खुली आंख की रोशनी,
अध्यापक माथे से फूटने वाली चेतना, अध्यापक धरती का सूर्य, अध्यापक बच्चों में छुपी उड़ान का पंख, अध्यापक समाज का चौमुखिया दिया, अगर ना जले तो चारों ओर गहरा अंधेरा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। दूसरी कविता है अध्यापक दा थप्पड़। 6वीं क्लास पंजाबी दा अध्यापक जिस दा पै स्कूल दी 4 दीवारी तक फैलिया होया सी। 6वीं क्लास पंजाबी दा अध्यापक जिस दा पै स्कूल दी 4 दीवारी तक फैलिया होया सी। अध्यापक मैनू खड़ा कर आखदा, अंबर उत्ते वाक बनाओ। डरदा डरदा कंबदा कंबदा उड़दे चिट्टे बदलां वल वेख कहा, अंबर दा रंग चिट्टा है। अध्यापक दे थप्पड़ नाल जा डिगदा हां कुड़ियां दे झुंड विचकार। उल्लू दे पट्ठे अंबर दा रंग चिट्टा हुंदा। वक्त बीत्या मन दे अनुभव नाल अख दा अंबर फैलिया। अज थप्पड़ दा एहसास हुंदा, उस थप्पड़ नाल मैनू दिस दे पिछे अणदिसदा देखना आ गया। इसका हिंदी वर्जन ऐसे है सर कि 6ठी क्लास पंजाबी का अध्यापक जिसका भय स्कूल की 4 दीवारी तक फैला हुआ था। 6ठी क्लास पंजाबी का अध्यापक जिसका भय स्कूल की 4 दीवारी तक फैला हुआ था। अध्यापक मुझे उठाकर कहता है, आसमान पर वाक्या बनाओ। डरता डरता कांपता कांपता उड़ रहे सफेद बादल की ओर देखकर कहा, आसमान का रंग सफेद है। अध्यापक के थप्पड़ से जा गिरता हूं लड़कियों के झुंड के बीचों बीच। उल्लू के पट्टे आसमान का रंग सफेद होता है। वक्त बीता मन के अनुभव के साथ आंख का आसमान फैला। आज थप्पड़ का एहसास होता है, उस थप्पड़ से मुझे दिखते के पीछे अनदेखा देखना आ गया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थैंक यू। You want to present one more? नहीं सर, थैंक यू। Fine. Thank you so much, Dr. Gurpreet ji. Now we shall listen to Dr. Balakrishna Sharma ji from Sanskrit language. He hails from Gura Pandey of Uttar Pradesh, and Balakrishna Sharma ji holds Sahitacharya and PhD to his credit, and he is a renowned teacher, poet, researcher, and thinker. Has contributed to Sanskrit literature and with the 5 anthology of poetry that includes his and including many research papers and so on. He's a well decorated with the author having awarded by Sanskrit Board Bhopal, Gwalior Vikas Samiti, Dr. Hari Singh Gaur University, Central University, and many other prestigious institutions who have bestowed many honors and awards on Dr. Balakrishna Sharma. With these few words, may I request Dr. Balakrishna Sharma ji to kindly present his poetry in Sanskrit. Dr. Balakrishna. नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों, कवियों, संस्कृत अकेडमी के अधिकारियों सबका मैं अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और बालाकृष्ण शर्मा जी, आपका जो वीडियो है ना, आपका इसमें जब आप आगे आ रहे हैं तो तभी आपका पूरा चेहरा अच्छी तरह से नहीं दिखा ना पा रहा। शिक्षक दिवस के अवसर पर कैमरा थोड़ा नीचे कीजिएगा तभी चेहरा पूरा आएगा। नहीं, अभी ठीक है। सही हो गया? अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा निधिश्च वसुधा तलवासी देवो, शिक्षा निधिश्च वसुधा तलवासी देवो, देवाद्रितुल्य महनीय गुणाभिरामः, देवाद्रितुल्य महनीय गुणाभिरामः।
रत्नाकरेण सदृशो हि गभीर भावो, रत्नाकरेण सदृशो हि गभीर भावो, लोके सदा लसतु भूसुर शिक्षकोऽसौ, लोके सदा लसतु भूसुर शिक्षकोऽसौ। विद्यानिधिः सरलता, विद्यानिधिः सरल जीवन भूषितोऽसौ, विद्यानिधिः सरल जीवन भूषितोऽसौ। धाराधरोच्च परिपक्व विचारशीलः, धाराधरोच्च परिपक्व विचारशीलः। औदार्य वारिधि समो गुरुनामधेयो, औदार्य वारिधि समो गुरुनामधेयो। लोकेऽखिले लसतु लाञ्छनहीन चन्द्रः, लोकेऽखिले लसतु लाञ्छनहीन चन्द्रः। सान्दीपनीव चरितश्च गवीशरूपः, सान्दीपनीव चरितश्च गवीशरूपः। चाणक्य पाणिनि पतञ्जलि तुल्य तेजः, चाणक्य पाणिनि पतञ्जलि तुल्य तेजः। वाचस्पतिव चतुरो वरतन्तुशीलो, वाचस्पतिव चतुरो वरतन्तुशीलो। लोकेऽखिले लसतु शिक्षक भास्करोऽसौ, लोकेऽखिले लसतु शिक्षक भास्करोऽसौ। विद्या विनम्र वचनस्तपसा कठोरो, विद्या विनम्र वचनस्तपसा कठोरो। शान्तस्तथा प्रमुदितो मुखमुद्रयासौ, शान्तस्तथा कठोरो मुखमुद्रयासौ, शान्तस्तथा प्रमुदितो मुखमुद्रयासौ। दान्तेन्द्रियश्च मनसा सरलः प्रसन्नो, दान्तेन्द्रियश्च मनसा सरलः प्रसन्नो। लोकेऽखिले जयतु शिक्षकरूपदेवः, लोकेऽखिले जयतु शिक्षकरूपदेवः। शास्त्रेषु सागरसमेषु विचक्षणोऽसौ, शास्त्रेषु सागरसमेषु विचक्षणोऽसौ। काव्येषु भावभरितेषु सदैव मग्नः, काव्येषु भावभरितेषु सदैव मग्नः। विज्ञान वेद निपुणश्च कला प्रवीणो, विज्ञान वेद निपुणश्च कला प्रवीणो। लोकेऽखिले लसतु शिक्षक शर्वरीशः, लोकेऽखिले लसतु शिक्षक शर्वरीशः। साधुर्विनम्र वचनः शुचिता समेतो, साधुर्विनम्र वचनः शुचिता समेतो। धीरः प्रसन्नवदनः करुणा समुद्रः, धीरः प्रसन्नवदनः करुणा समुद्रः। शान्तः प्रफुल्ल कुसुमेन समः सुशीलो, शान्तः प्रफुल्ल कुसुमेन समः सुशीलो। लोकेऽखिले विजयते गुरुराजहंसः, लोकेऽखिले विजयते गुरुराजहंसः। बहुत सुंदर। अध्यापनेषु निपुणोऽध्ययने प्रवीणः, अध्यापने सुनिपुणोऽध्ययने प्रवीणः। सौम्य स्वभाव गुणधर्म विभूषितोऽसौ, सौम्य स्वभाव गुणधर्म विभूषितोऽसौ। कारुण्यपूर्ण चरितश्च सदैव नम्रः, कारुण्यपूर्ण चरितश्च सदैव नम्रः। कल्पद्रुमो विजयते गुरुनामधेयः, कल्पद्रुमो विजयते गुरुनामधेयः। बुद्धश्च शुद्धचरितो मनसा मनोज्ञः, बुद्धश्च शुद्धचरितो मनसा मनोज्ञः। सत्याग्रही च सरलः वचसा विनम्रः, सत्याग्रही च सरलः वचसा विनम्रः।
योगी दयार्द्र चरितः खलु कर्मणा वा, योगी दयार्द्र चरितः खलु कर्मणा वा, लोके विभातु चरितेन च शिक्षकोऽसौ, लोके विभाति चरितेन च शिक्षकोऽसौ। विज्ञान दर्शन कला नृपनीति दक्षो, विज्ञान दर्शन कला नृपनीति दक्षो, शिक्षा समुद्र मथने गिरिमंथरेव, शिक्षा समुद्र मथने गिरिमंदरो यः, शिक्षा समुद्र मथने गिरिमंदरो यः। वाग्मी विधान चतुरो चतुराननाभो, वाग्मी विधान चतुरो चतुराननाभो, जे गीयते स भुवि राष्ट्रपतिर्द्वितीयः, जे गीयते च भुवि राष्ट्रपतिर्द्वितीयः। यः शिक्षकेषु महनीय तमो विनीतस्, यः शिक्षकेषु महनीय तमो विनीतः, षड्दर्शनेषु निपुणो च गुरुर्गरीयान्, षड्दर्शनेषु निपुणो च गुरुर्गरीयान्। विद्यावदात चरितो भरितो विचारैर्, विद्यावदात चरितो भरितो विचारैर्, लोके विभातु खलु राष्ट्रपतिर्द्वितीयः, लोके विभातु खलु राष्ट्रपतिर्द्वितीयः। प्राच्याग्रही निगम शास्त्र विदग्रगण्यो, प्राच्याग्रही निगम शास्त्र विदग्रगण्यो, काव्ये नव्येषु चापि निपुणो गणतंत्रवेत्ता, नव्येषु चापि निपुणो गणतंत्रवेत्ता। शिक्षाविदाग्र शिक्षाविदां प्रथम शिक्षक शुभ्रकीर्तिर्, शिक्षाविदां प्रथम शिक्षक शुभ्रकीर्तिर्, लोके विभातु खलु भारत राष्ट्रपुत्रः, लोके विभातु खलु भारत राष्ट्रपुत्रः। मान्यो वदान्यचरितश्च विधानवेत्ता, मान्यो वदान्यचरितश्च विधानवेत्ता। नान्यो जनो जगति जेन गुणेषु तुल्यः, नान्यो जनो जगति जेन गुणेषु तुल्यः। धन्योनु भारत धरा तनयो विनीतो, धन्योनु भारत धरा तनयो विनीतो, धन्योनु भारत धरा तनयो विनीतो। लोके विभातु किलु शिक्षक रत्न भूतः, लोके विभातु किल शिक्षक रत्न भूतः। शिक्षा क्रियासु निपुणो नवनीत चित्तो, शिक्षा क्रियासु निपुणो नवनीत चित्तो, शिक्षा क्रियासु निपुणो नवनीत चित्तो। वैदुष्य कोश परिपूर्ण कुशाग्र बुद्धिः, वैदुष्य कोश परिपूर्ण कुशाग्र बुद्धिः। वक्तृत्व कौशल गुणो रचना प्रवीणो, वैदुष्य वक्तृत्व कौशल गुणो रचना प्रवीणो। लोके विभातु गुरु राष्ट्रपतिर्द्वितीयः, लोके विभातु गुरु राष्ट्रपतिर्द्वितीयः। लोके हि हंस सदृशो सफलो विवेके, लोके हि हंस सदृशो सफलो विवेके। यश्चंचरीक सदृशो गुण संग्रहे वा, यश्चंचरीक सदृशो गुण संग्रहे वा। मान्यस्तथा पिकसमो मधुर प्रभाषे, मान्यस्तथा पिकसमो मधुर प्रभाषे। धातुर्विचित्र रचना खलु शिक्षकोऽसौ, धातुर्विचित्र रचना खलु शिक्षकोऽसौ। यः पारिजात सदृशः खलु कामनायै, यः पारिजात सदृशः खलु कामनायै। पित्रा समो गुरुकुले ननु पालको वा, पित्रा समो गुरुकुले ननु पालको वा। मात्रा समोहित करो जगति प्रसिद्धो, मात्रा समोहित करो जगति प्रसिद्धो। धन्यस्य विश्वमहितो किल शिक्षकोऽसौ, धन्यस्य विश्वमहितो किल शिक्षकोऽसौ, धन्यस्य विश्वमहितो किल शिक्षकोऽसौ। बालकृष्ण शर्मा महोदयः, अस्मिन् जी। जगति ये विशेषांशाः शिक्षकस्य कृते प्रवर्त्यते तान् सर्वान् भवता
पद्यश्लोकरूपेण सम्यक् वर्णितमस्ति। यस्य कृते अहं धन्योऽस्मि। मेरे पास और कविताएं हैं, अगर आप आदेश दें। जरूर 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 प्रस्तुत कीजिए, अस्य संदेहो नास्ति, श्रावयितुम् अवश्यम्। जी 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 जी, धन्यवाद। गुर्वित्यभिख्या समलंकृतं भवे, गुर्वित्यभिख्या समलंकृतं भवे, नमामि गोविंद महत्परं परां, नमामि गोविंदम अहं परात्परं, गुरुं च वन्दे भवमोहहारिणं, सदैव गोविंद पदेन बोधितं, सदैव गोविंद पदेन बोधितं। उदीरितो यो मुनिभिर्जगद्गुरुः, उदीरितो यो मुनिभिर्जगद्गुरुः, सनन्दसूनुः शरणागतावकः, सनन्दसूनुः शरणागतावकः। ममत्वमूर्तिः द्युतिमण्डलाननः, ममत्वमूर्तिः द्युतिमण्डलाननः, भवेच्च नित्यं मम नित्यगोचरः, भवेच्च मम नित्यं नित्यगोचरः। पवित्र गीतामृत वर्षिता वर्षिवारिदिः, पवित्र गीतामृत वर्षिवारिदः, गभीर चित्यन्वित शून्य दर्शकः, धृति प्रदाता च तनोतु शेमुषीं, हरत्तमो मे महतो महानसौ, हरत्तमो मे महतो महानसौ। शिवस्य भक्तः पितृकाननास्य, शिवस्य भक्तः पितृकाननालयः, ससिद्धि सत्त्वा किल योगी पुंगवः, प्रदर्शयन् सिद्धमतानि संततं, करोतु गोरक्ष गुरोश्च सन्निधिं, करोतु गोरक्ष गुरोश्च सन्निधिं। ब्रजाधिवासीं ब्रजाधिवासी यदुवंश संभवः, करस्थ गोवर्धन शोभयान्वितो, करस्थ गोवर्धन शोभयान्वितो। घनोपमः पिच्छ किरीट मंजितः, घनोपमः पिच्छ किरीट मंदितः, ददातु पीतांबर रूप दर्शनम, ददातु पीतांबर रूप दर्शनम। बहुत सुंदरम महोदयः। एक कविता और सुना सकते हैं? हाँ जी 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 जी, अगर और एक है तो 2-3 मिनट में जरूर प्रस्तुत कीजिए। जी जी जी। वैदुष्य सारल्य सुयोग जातः, वैदुष्य सारल्य सुयोग जातः, संवेदनाशील गुणो गुणज्ञः, संवेदनाशील गुणो गुणज्ञः। विद्या गुरुर्मे सजय प्रकाशो, विद्या गुरुर्मे सजय प्रकाशो, बिभ्राजतामक्षर वेद तुल्यः, बिभ्राजतामक्षर वेद तुल्यः। विद्यानुरागी कविता प्रवीणः, विद्यानुरागी कविता प्रवीणः, वेदांग वेदभ्यसनी धुरीणः, वेदांग वेदभ्यसनी धुरीणः। प्राचीन नव्यो भय शास्त्रवेत्ता, बालकृष्ण शर्मा जी, I think there is some technical issue. Anyhow, fine. Thank you so much, Dr. बालकृष्ण शर्मा जी, क्या शर्मा जी क्या खत्म हो गया?
धन्यवाद। Dhanyawad ji. Thank you so much. As just I thought to explain you the role of a teacher in anybody's life. Once there was a Sanskrit student who began to learn Sanskrit. So after learning a few things, he has come to a conclusion and made a statement in Sanskrit saying that ahameva panditaha, I am only scholar. Just he began to learn Sanskrit and he was under the impression that I am only the scholar in Sanskrit. So the teacher was not happy. So the teacher thought of change his mindset. So after a few days, the student has come to one feeling that aham panditaha, I am a scholar. From the very statement that I am only scholar, he has come to the second stage of what you call realization, saying that I am a scholar. So even that was not pleased by the teacher. So I thought, okay, let him, instead of explaining the what you call textual aspects, let me explain him certain things where he's going to be enlightened. So after a few days, the student could come to conclusion saying that ahamapi panditaha, I am also scholar. First he said, I am only the scholar. Second he said, I am the scholar. The third he has come to conclusion that I am also scholar. So even it was not appreciated by the teacher. How can you say that I am also a scholar? So the teacher has changed the way of what you call enlightening him, and where finally after a few years, the same student who was guided by the teacher has come to a conclusion saying that naham panditaha, I am not at all a scholar. Because as you know that when we start learning the things, then we realize the importance of knowledge, then we come to conclusion that I don't know anything. So that's why the student has come to conclusion saying that naham panditaha, I am not a scholar. So when he was in the beginning of education, he was under the impression that I am only a scholar. So that's why the same student who was transformed and enlightened by the teacher has changed his opinion from the very statement that I am only the scholar, then I am scholar, I am also a scholar, then he has come to conclusion that I am not a scholar. So such is the influence of a teacher. And as rightly said by Dr. APJ Abdul Kalam ji, the missile man of India, who has inspired lakhs of students, he said in his one of his speeches, he said, learning needs freedom to think and freedom to imagine, and that both have to be facilitated by the teacher. So this can be done only by the teacher, because he himself said in one of his statements that a teacher's life lights many lamps. As it is being said by, if I'm not wrong, the Vishwakavi Rabindranath Tagore ji, that a fire that kindles many other lights. So that's why I think it is only the teacher who can modify and change the future of a student, future of his disciple. So with these few words, I have the great pleasure of thanking all the 4 teachers who have participated today, right from beginning, Dr. Rakesh Verma ji, Dr. Gaurav Pandey ji, Dr. Gurpreet Borawal ji, and Dr. Balshan Sharma ji, for devoting your precious time with us on this very auspicious day of Teachers' Day of India. So thank you so much. I sincerely thank all the viewers and all the participants on behalf of Dr. K. Srinivas Rao ji, Secretary Sahitya Academy, for devoting your time. Thank you so much. With this, the program. धन्यवाद सर। व्यास तो बड़ा अच्छा अपडेट